Vaheguru, from the bottom of my heart, I wish you all a very happy New Year. Hare Ram. You know, New Year is like Guru itself. Guru Purab is the Guru itself. Eid is a Guru itself. Diwali is a Guru itself. Christmas is a Guru itself. What does it remind you? One word, it's a mantra. Happy New Year. It reminds you, be happy. Why? Because you want to be happy. Why are you unhappy? Anyway, okay. Let New Year be an occasion, at least now be happy. Okay, let it be Diwali today. Be happy. Eid means celebration. Why don't we celebrate life? Why do we find reasons to be unhappy? Hare Ram. So they remind you the ultimate need of a man is to be happy. We want to be happy because we need an occasion. Well, so the occasion has come. Today is New Year, be happy. Today is birthday, okay, well, be happy. Today is Diwali, okay, be happy. Because you want an occasion to be happy. So there are various occasions. Each reminds you, be happy. You want some attainment to be happy. Some attainment, some victory, some money, some honor, some appreciation, some reminder. But actually, happiness is the greatest attainment. Gurudwara is waste if it doesn't remind you that you've come here to be happy, to be reminded that you want to be happy. A mandir is a useless thing if it is unable to remind you to be happy. Now, why am I and how am I talking all this? Because I have seen happiness. There is an ocean of happiness within each one of us. Anybody who's able to see that happiness, there's an ocean of happiness within us. So I motivate you how? Who is motivating me? There is something which is motivating me all the time. एक प्रेमानंद का सागर है अंदर. Anybody who is able to see that has been called a seer. S-E-E-R, seer. Seer को वो ओशन के दर्शन हो गए. ओशन के, उसको ओशो भी बोल देते. इसको संस्कृत वर्ड ऋषि है. ऋषि means who's been able to see, not with these two eyes. ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिल वड्याई. जिसको वो सागर दिख जाता है वो बोल नहीं सकता उसके बारे में कुछ भी. ज्ञानी त्यानी गुरु गुरहाई. गुरु की गुरहाई भी, सिख की सिक्खी भी एडजेक्टिव है. गुरहाई गुरहाई भी नहीं बता सकती क्योंकि तुमको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे. ना जुबान को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है कि बने ये जुबान नजर कैसे, कि बने ये नजर जुबान कैसे. सुज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाए तेरी तिल वड्याई.
वो कितना सुंदर है, कितना बड़ा है, उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती. हाउ ब्यूटिफुल इज दैट ओशन, हाउ बिग इज दैट ओशन. Nobody can ever explain it, because language is inadequate to explain how beautiful that Satyam Shivam Sundaram is. It's impossible. So या तो वाह बोल सकता है, वाहेगुरु, या फिर वो मौन हो सकता है. मुनि मुनि होता है जो चुप कर जाए, क्योंकि उसको पता है बोला तो जा नहीं सकता, चुप कर जाता. हरे राम. इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप भी तो ढूंढ तो उसी को रहे हैं ना. एवरीबडी इज सीकिंग दैट हैप्पीनेस, और किसी ना किसी वजह से दुखी हो, किसी ना किसी वजह से. हरे राम. धार्मिक तो हो गए हो, गलत ठीक डिसिप्लिन डिसिप्लिन सब सीख लिए हैं, मगर बात तो नहीं बनी. जिसको वो दिख जाता है वो कोई धार्मिक नहीं होता, वो इनडिसिप्लिन्ड होता है. मेरे को तो कोई डिसिप्लिन नहीं आता. आई रियली डोंट हैव एनी डिसिप्लिन इन माई लाइफ. Neither do I impose any discipline on anybody, neither on my children, nor on my staff, nor on my students, nor on my colleagues. I don't impose any. I never find anything wrong with anybody. जो कुछ भी कर रहा है ठीक है. बिकॉज ये पुण्य पाप विचार दे स्मृति शास्त्र तत्ते सार न जानी. जो किताबें हैं वो तो आप राइट एंड रॉन्ग में फंसे रह जाते. दुनिया की निगाहों में भला क्या बुरा क्या, ये बोझ अगर सर से उतर जाए तो अच्छा. ये ठीक गलत की डेफिनेशन नहीं है. आई हैव बीन एन आर्मी मैन. आई हैव नेवर फॉलोड एनी डिसिप्लिन. आर्मी यू हैव टू बी डॉट एट ऑन द टाइम, अगर 8 बजे हॉस्पिटल खुलता है या यूनिट खुलता है आपका, तो 8 o'clock यू बी देयर. आई वॉज नेवर. मैं 6 बजे चले जाता था. तो नो बड़ी पॉइंट्स. मैं तो अपनी मौज में हूँ, 6 बजे जाके बैठा हूँ. सो नो बडी कैन से एनीथिंग रॉन्ग विद मी. 8 बजे सबको पहुंचना है, लोग भाग दौड़ के पहुंच रहे हैं कि 8 के 8 1 ना हो जाएंगे. मैं तो 2 घंटे पहले पहुंचा. मैं कभी कभी मैं बहुत लेट हो जाता था, तो फिर 7 बजे पहुंच जाता. बहुत ही कोई काम पड़ गया तब भी मैं 7:30 पहुंच जाऊंगा. पर मेरे को तो कोई डिसिप्लिन तो है ही नहीं. कोई ट्रेन ने जाना हो 5 बजे, तो मैं तो 12 बजे जाके पहुंच जाता हूँ स्टेशन पे. ऐसे ही चाय वाय पीता हूँ, इधर उधर किताबें विताबें देखता हूँ, मौज में घूमता रहता हूँ. कभी लेट हो ही नहीं सकता. लाइफ इज बिन स्पेंट लाइक दैट. आदत पड़ गई है इनडिसिप्लिन की. सुबह उठना है, कभी भी आज तक अलार्म नहीं लगाया. आज तक कभी अलार्म नहीं लगाया. 5 बजे उठना चाहिए सुबह, पर मैं तो 2 बजे ही उठ जाता हूँ. ठीक है, मौज है बिल्कुल. अलार्म की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि 5 बजे उठना चाहिए, तो मैं तो 3 घंटे पहले उठा ही हुआ हूँ. कभी लेट भी हो जाता हूँ बहुत, 3 बज जाते हैं. ठीक. सो लाइफ इज बिन एफर्टलेस. लाइफ इटसेल्फ इज बिकम एन आश्रम. किसी आश्रम वाश्रम में नहीं जाता हूँ, लाइफ ही आश्रम. किसी मंदिर में नहीं जाता हूँ, घर ही मंदिर है. कभी किसी गुरुद्वारे नहीं जाता हूँ. मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुस्लिम भी हूँ, पारसी भी हूँ, मैं सिख भी हूँ. सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं.
कैथोलिक भी हूँ, किसी कैथोलिक्स ने मेरे को बुला लिया टॉक के लिए, ऐसे चलिए चले जाता हूँ, मैं आई एम ऑल्सो कैथोलिक। तो कैथोलिक का मतलब होता है जो कोई कि धर्मों में बिलीव नहीं करता, एक ही धर्म है, यूनिवर्सल कैथोलिक, सर्व सांझी गुरबानी। बट ठीक, लाइफ इज सेलिब्रेशन, ओकेजन्स कम टू यू एज अ गुरु कि खुशी करो, सेलिब्रेट करो, ठीक गलत में मत फंसे रह जाओ, बस मजा करो हर वक्त। आदतें ही ऐसी डाल लो कि कभी लेट होना ही ना पड़े, ठीक टाइम पे पहुंचना ही ना पड़े कभी भी, आप पहले ही पहुंच जाया करो। आदतें ही ऐसी डाल लो कि लाइफ बिकम्स कंफर्टेबल, हरी वरी करी सब खत्म, हरी वरी, कोई हरी नहीं, कभी किसी बात की जल्दी नहीं। बच्चे देखते हैं लिफ्ट में जाते जाते खाना खा रहे होते हैं क्योंकि खाना खाने का टाइम नहीं मिला, बस आ जाएगी। अरे पहले ही क्यों नहीं 3 बजे क्यों नहीं उठ जाते हो, आराम से खा पी भी लिया करो, कभी कोई जल्दी नहीं है। आप ही ने तो स्ट्रेस क्रिएट किया हुआ है बाय योर लाइफस्टाइल। उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत। By your lifestyle, you can bless yourself and learn to be always happy. The only goal of life is to be happy. Not the do's and don'ts, but to be happy. और क्या गोल है लाइफ का? किस लिए गुरुद्वारे जाते हो, किस लिए स्पिरिचुअलिटी, किस लिए मेडिटेशन? कोई जरूरत नहीं, मैं तो कोई मेडिटेशन नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। सुबह उठ के क्या करते हो 3 बजे? क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए ना, मैं खुश रहता हूँ, कुछ करता तो नहीं हूँ। लोग पूछते हैं योग करते हो, क्या करते क्या क्या हो उठ के? मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, सो आई गेट एम्बैरेस्ड कि क्या बताऊं, मैं तो कुछ भी नहीं करता। अब मैं अब तो जिंदगी भर में भी कुछ नहीं करता, काम भी नहीं करता हूँ कोई भी, सिर्फ मस्ती में हमेशा रहता हूँ। आई टेल यू, जिसको वो सागर के दर्शन हो जाते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं। तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे जब प्यार तुम्हें हो जाएगा। फिर आप सिख मुस्लिम हिंदू रह ही ना जाएंगे, मगर सब कुछ ही हो जाएंगे। आप मुस्लिम भी होंगे, फिर आप पारसीज के टेम्पल में सिर्फ पारसीज ही जा सकते। मेरे को एक आदमी मिल गया स्ट्रेंजर, आई टुक अ लिफ्ट इन बॉम्बे। सो बातें बातें में पूछा कि आप क्या हैं, तो मैं बोला मैं भी पारसी हूँ। तो अरे मैं तो मंदिर जा रहा था, चलो मेरे साथ। मैं कहा चलो जी, आ जाओ। सो आई हैड द प्रिविलेज टू सी अ पारसी मंदिर। कोई मुस्लिम्स थे मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मैं बोला मेरे को भी मस्जिद जाना है। वो कहता है सर नहीं जा सकते, ऐसे सभी लोग नहीं जा सकते मस्जिद। क्यों नहीं जा सकते? सर हम मुस्लिम ही जा सकते हैं। सिर्फ मैं भी मुस्लिम हूँ। वो तो ठीक है सर, मगर फिर आपको कपड़े भी तो मुस्लिम वाले डालने पड़ेंगे। हाँ तो मैं डाल लेता हूँ, क्या होता है, थोड़ा ऊंचा पजामा डालना है, टोपी डालनी है, मेरे को डलवा दो ना प्लीज। तो फिर सर आपको वजू भी सीखना है, वजू तो सफाई करने को ही बोलते हैं ना, वह तो मेरे को सिखा दो ना वजू करना कैसे करते। सो उन्होंने सिखाया मुझे, वजू करना सिखाया और ले गए मस्जिद। फिर मैं रोज रोज मस्जिद जाता था। 2 साल मैं मुस्लिम बन के रहा, बड़ा अच्छा लगा। कोई भी धर्म आपको बताता क्या है कि खुश रहना चाहते हो ना, फिर रहो ना। ईद मनाओ रोज। ईद का मतलब होता है सेलिब्रेशन, द वर्ड ईद मीन सेलिब्रेशन। तो क्यों नहीं, दिवाली का मतलब ही क्या होता है, दीपावली। सब जगह दिए चलते रहे, दिल में भी बाहर। हमारे घर में क्रिसमस ट्री हमेशा ही रहता है और उसके अंदर वो जलती रहती है लाइट, हमेशा ही, कभी बुझाते नहीं। और दिवाली की लाइट्स भी घर के बाहर लगी हुई हैं, वो रोज रात को जला देते। फिर दिवाली मनानी नहीं पड़ती, हम दिवाली नहीं मनाते कोई, क्योंकि रोज ही मनाते हैं। फिर उस दिन क्यों मनाएंगे जब रोज ही मना रहे? जस्ट अ रिमाइंडर, न्यू ईयर इज अ रिमाइंडर, बी हैप्पी। न्यू ईयर इज अ गुरु। गुरु क्या होता है?
गुरुत्वाकर्षण, मैग्नेट। क्या हैप्पीनेस मैग्नेटिक नहीं होती? हैप्पीनेस इज मैग्नेटिक, हैप्पीनेस इज नेचुरल, हैप्पीनेस इज मैग्नेटिक। थोड़ा सरप्राइज जरूर होता है, पहले, सबसे पहले तो सरप्राइज होता है कि सर क्या हुआ है, इतने खुश क्यों हो? हाँ, सरप्राइज हुआ ना। हाँ, तो अब मुझे कोई ना कोई तो कारण बताना पड़ेगा। दिवाली तो मैं बता नहीं सकता, लोगों को पता है आज दिवाली नहीं है, सो मुझे कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। आज एनिवर्सरी है मेरी। ओह वेरी गुड सर, हैप्पी एनिवर्सरी। चलिए केक खाइए प्लीज, मिठाई खाइए। कोई ना कोई तो कारण बताना ही पड़ेगा। सो नो दैट एवरी डे इज अ रीजन टू बी हैप्पी। चाहे आप सिख बन के हैप्पी हो जाइए, चाहे आप हिंदू बन के हो जाइए, चाहे गुरुद्वारे जाके हो जाइए, चाहे न्यू ईयर है तब हो जाइए, किसी ना किसी कारण से खुश तो हो जाइए। और मेरे कहने पे नहीं, आप भी तो यही चाहते हो ना। जिंदगी में बचपन से यही तो चाहा कि खुश क्यों नहीं है, खुश हो जाओ। और आनंद के लिए प्रेम बहुत जरूरी है। विदाउट लव यू कांट बी हैप्पी। सो देन become intelligent, become selfish. Don't love others because you want to make others happy. You love others because you want to make yourselves happy. Become selfish. Love everybody because you are very selfish. शास्त्र तो आपको कहेंगे सेल्फलेस हो जाओ, ये तो आप बुझ जाओगे बिल्कुल। मैं तो कहूंगा आपको सेल्फिश हो जाओ, मैं तो बहुत सेल्फिश। आई हेल्प एवरीबडी, आई लव एवरीबडी। जहां मौका मिले कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर देता हूँ सबके लिए। कितना सेल्फिश, हर दिन खुशी रहती, हर वक्त किसी ना किसी को किसी भी तरीके से कोई चीज दी जा सके दे देता हूँ, स्माइल दी जा सके दे देता हूँ, हाथ टच किया जा सके टच कर देता हूँ, कोई ना कोई तरीके से। हरे राम। बेगर आ जाए तो स्माइल दे देता हूँ, वो पैसे खटखटाता रहता है दरवाजा, कुछ दीजिए, मैं कहता हूँ कि नहीं है, क्या है, चेंज नहीं है। तो आजकल तो बेगर्स वो दिखा देते हैं, वो ना कोड दिखा देते हैं अपने फ़ोन पे, कहते हैं सर इस पे दे दीजिए पैसे। और चलो ठीक है दे लो है, कोड दिखा देते हैं वो। बेगर्स के पास भी, सबके पास फ़ोन भी होता है, तो कोड दिखा देते हैं। मैं चलो भी 10 रुपए दे नहीं सकते उसमें, शायद मैंने कभी दिया नहीं, तो चलो 50 रुपए दे दे। वो मुझे कहता है इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं सर, 50 रुपए देंगे सर। ऐसे यार ये इतने बहुत है यार, और क्या दूं? तब तक वो रेड लाइट ठीक हो जाती है, मैं आगे चले जाता हूँ। बी हैप्पी ऑलवेज। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बिकम सेल्फिश। मैं उल्टी पुल्टी चीजें सिखा रहा हूँ। बिकम सेल्फिश। दिवाली क्रिसमस मत मनाओ, गुरपुरब मत मनाओ, क्योंकि रोज मनाओ। कभी टाइम पे मत जाओ कहीं पे भी, बहुत पहले चले जाया करो, कितना मजा आएगा। ऐसे ही घूमते रहोगे। किसी ने मेरे से पूछा, बड़ा ऑब्जर्व करता था, बड़ा एक आदमी मेरे को रोज रोज कहता आप ऐसे चलते हो जैसे कहीं जाना ही नहीं है। हाँ, मेरे को तो कहीं नहीं जाना, इतना कोई जल्दी तो है ही नहीं। हरे राम, हरे राम, हरे राम। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ आर्ट ऑफ लिविंग। श्री श्री रविशंकर जी से सीख लीजिए, सदगुरु से सीख लीजिए, किसी से भी सीख लीजिए। न्यू ईयर से ही सीख लीजिए। आज के बाद याद आ गया कि मुझे खुश रहना है, बीमारियों बीमारियों के बारे में नहीं सोचना। मेरी अभी गर्दन बहुत दुख रही है, इट्स ओके, दुखती है कभी कभी, डजेंट मैटर। एवरी डे यू कांट बी completely pain free, you know. Pain is inevitable, but suffering is optional. सफरिंग का मतलब आपको एक को क्यों दुख रही है, क्या करूं, यही दुख रही है, कभी कभी तो दुखेगी, गर्दन भी दुखेगी, कभी पीठ भी दुखेगा, कभी बुखार भी होगा,
तो बॉडी इज मेड लाइक दैट। हरे राम, हरे कृष्णा। मगर सांस तभी रुकेंगे जिस दिन रुकने होंगे, तब तक नहीं रुकेंगे। जिस दिन रुकने होंगे उस दिन रुक जाएंगे, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। वो कोई दर्द वर्द नहीं होगा, एकदम रुक जाएंगे बस। आई अश्योर यू, जब रुकना होगा तो रुक जाएंगे। तब तक तो खुश रहे ना। हम ह्यूमन लाइफ में आए हैं दुखी 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 दुखी, बूढ़े हो जाएंगे, हमसे चला नहीं जाएगा, ओल्ड एज होम जाना पड़ेगा। व्हाट इज ऑल दिस? ये क्या क्या सोचते रहते हैं? हरे राम, वाहिगुरु। आज के बारे में सोचिए बस। इतने दूरदर्शी मत हो जाइए। दूरदर्शी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। इतनी प्लानिंग के बूढ़े हो जाएंगे क्या करेंगे, ये बहुत इतनी प्लानिंग की कहाँ जरूरत है। आज का दिन हैप्पी न्यू ईयर, एवरी डे हैप्पी दिवाली, हैप्पी गुरपुरब, हैप्पी बर्थडे, ईद मुबारक। कोई श्लोक व्लोक की जरूरत नहीं है इसके लिए। पर जो कुछ मैं बता रहा हूं ये श्लोक ही है, ये मंत्र ही है। बस याद रखो कि मुझे तो खुशी तो रहना है, और करना क्या है जिंदगी में। और उसके लिए नेसेसिटी, साधना क्या है? प्रेम करना है, सेल्फिश हो जाना है। लव एवरीवन। किसी को, एक को, किसी आदमी को, औरत को, किसी को कोई अपना बिलवेड बना लो, म्यूज बना लो। सॉक्रेटिस हैड अ म्यूज, डिओटिमा। कोई म्यूज होना चाहिए, म्यूज बोलते। उसको बॉयफ्रेंड बोलो, गर्लफ्रेंड बोलो, बच्चा बोलो, मुन्ना बोलो, कुछ भी बोलो। किसी को बना लो बस। वो अपने, उसको कभी मत छोड़ो, हमेशा दिल में रखो, हमेशा। हाथ से नहीं पकड़ के रख सकते, वो तो मैं अपनी वाइफ को भी नहीं पकड़ के रख सकता, उसने 100 काम करने। किसी को नहीं पकड़ सकते हाथ से। सो इसीलिए बोलते हैं हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो। इल्जाम हाथ से मत पकड़ो, दिल से पकड़ो। दिल में हमेशा ही वो दिल भर हो। हरे राम। उसको चाहे ना भी बताओ, आपको तो पता है ना। मेरे बेटे को स्कूल जाने में, नहीं जाने का दिल नहीं कर रहा है। अरे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? इसका मतलब नहीं है। अगर होती तो क्यों ना जाते स्कूल? तो बनाओ कोई गर्लफ्रेंड। वो सोचेगा चलो, एक तो पापा क्या सी बातें कर रहे हो, आप ऐसी बातें मत करा करो। वेल सेकेंडरी, फिर गर्लफ्रेंड बने तभी ना। अरे उसको बनने की क्या जरूरत है, तुम बना लो। उसको बताओ थोड़ा, तुम बना लो मेरी गर्लफ्रेंड है, रोज उसको देखने के लिए स्कूल चले जाया करो और फिर पढ़ाई करो। कोई कारण तो मिले ना स्कूल जाने का। सो जिंदगी में भी एक आपका दिल भर तो चाहिए, दिल भर चाहिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। एक चाहिए, कोई ना कोई चाहिए। उसके बिना आप अकेले हो जाते हैं। हरे राम, हरे कृष्णा। कोई आकर्षण चाहिए जो कि आपको ड्रिवन रखे। आकर्षण, आकर्षण को नाम रख दो कृष्ण। उसका नाम रखो कृष्ण। कृष्ण आकर्षण ही तो है ना कृष्ण। कोई मैग्नेट चाहिए, उसको गुरु बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। जिसने आनंद देख लिया हो वो चाहिए कि बस तू ऐसा कैसे है, तेरे साथ सब कुछ इतना आसान कैसे। ऐसा कोई बंदा चाहिए जो कि हमेशा ही ड्रिवन रहता है। सो देन यू विल ऑल्सो बी ड्रिवन। टाइम के साथ धीरे 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 धीरे, यू विल नॉट रिक्वायर मोटिवेशन, यू विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड। हरे राम,
Hare Krishna. Vaheguru. Happy New Year. Very happy New Year.